अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू रियलिटी बाइट्स एट टोरंटो 360। हमारे तीसरे एपिसोड, शुरू के 2 एपिसोड आप लोगों ने बहुत पसंद किए। फीडबैक है मेरे पास। आई विल रीड फ्यू कमेंट्स जो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मिले। वहाँ पे एक पोल डाला था हमने, क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग सोशल इशू ऑफ आवर कम्युनिटी दीज डेज। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं। सना खान लिखती हैं, to be something and to do everything, like anything you do is never enough. Nida Faruqi लिखती हैं, a whole generation of children growing up in a world that is critical of Islam and the rise of Islamophobia. I honestly wonder how these kids will understand the negativity. Salonia Qasim लिखती हैं, I think the most pressing social issue these days is all about social media, cell phones, iPads, etc. Kids these days, youngest to youngest, are glued to their cell phones even when they are with their families and parents. They are even texting at the dinner table. The problem is everything has to be videotaped and put on social media for fame. काफ़ी लंबा comment है. Children age 14 are losing interest in their studies because they are too busy trying to compete with one another who has the most things and luxury brands. And it goes on. नौरीन जवानी ने बड़े मज़े का कमेंट डाला है जी। वो लिखती हैं, आई वॉच्ड अ कॉमेडी शो इन विच द कॉमेडियन कोटेड समवेयर, लाइफ इंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है ड्यू टू फेसबुक। द प्रेशर टू एंजॉय लाइफ इज एट इट्स पीक ड्यू टू फेसबुक। आज का टॉपिक अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग येट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। देखते हैं प्रोग्राम देखने के बाद आपका फीडबैक क्या आता है उसके बारे में। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं एक छोटे से वीडियो क्लिप से, जो कि जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने MIT की ग्रेजुएशन पे एक स्पीच दी है। उसका एक छोटा सा पार्ट हम आपको सुनाते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। There is so much out there conspiring to make you cynical. The internet has enabled so much and empowered so many. But it can also be a place where basic rules of decency are suspended and pettiness and negativity thrive. Don't let that noise knock you off course. Don't get caught up in the trivial aspects of life. Don't listen to trolls, and for God's sake, don't become one. Measure your impact on humanity not in likes, but in the lives you touch. Not in popularity, but in the people you serve. I found that my life got bigger when I stopped caring what other people thought about me. You will find yours will too. Stay focused on what really matters. There will be times when your resolve to serve humanity will be tested. Be prepared. People will try to convince you that you should keep your empathy out of your career. Don't accept this false premise. At a shareholders meeting a few years back, someone questioned Apple's investment and focus on the environment. He asked me to pledge that Apple would only invest in green initiatives that could be justified with a return on investment. I tried to be diplomatic. I pointed out that Apple does many things, like accessibility features for those with disabilities, that don't rely on an ROI. We do these things because they're the right thing to do, and protecting the environment is a critical example. He wouldn't let it go, and I got my blood up. So I told him, if you can't accept our position, you shouldn't own Apple stock. When you're convinced that your cause is right, have the courage to take a stand. If you see a problem or an injustice, recognize that no one will fix it but you. जी, तो वीडियो क्लिप आपने देखा, अंदाज़ा कर लिया होगा आज का टॉपिक है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान ज़्यादा हैं, जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद। अस्सलाम वालेकुम राशिद। राशिद, जैसे मैंने बताया, IT फील्ड में है काफ़ी सालों से, तो देखते हैं उनका क्या ओपिनियन है इस बारे में। और हमारे साथ आज हैं कलीद रशीद।
कलीद रशीद को इस शो में बुलाने का एक ख़ास रीज़न है। कलीद वैसे तो ब्लैकबेरी में जॉब करते हैं, कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हैं, नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं प्रोविंशियल कंजर्वेटिव के ईस्ट कुक्सविल से। लेकिन कलीद ने हाल ही ज्वाइन किया है फेसबुक, इससे पहले वो फेसबुक पे नहीं थे, और क्योंकि वो फेसबुक पे नहीं थे तो लोगों को लगता था वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और कलीद ने इसी फेसबुक की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी भुगती हैं, बहुत कंट्रोवर्सीज भी उन बेचारों ने फेस की हैं। तो मिलते हैं कलीद रशीद से। अस्सलाम वालेकुम कलीद। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बात करते हैं इनसे, दोनों से पूछते हैं कि इनके तासुरात क्या है। पहले तो राशिद आप मुझे ये बताइए, आप आईटी की फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं आईटी में, टेक्नोलॉजी में ओवर द इयर्स। आप मुझे बताइए कि ये चेंजेस जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, एंड इन टर्म्स ऑफ सोशल अरीना क्या चेंज है जो आपने देखा है, आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनदर वेरी गुड टॉपिक। जैसे कि आपने टेक्नोलॉजी के एज एन ओवरऑल चेंजेस तो बहुत हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर। चूँकि बात आपकी आज का टॉपिक है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो मैं पर्टिकुलरली आपको साथ बात करना चाहूँगा सोशल टेक्नोलॉजी पे। तो सोशल टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशनरी चेंज आए हैं ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स, वो बड़े फिनोमिनल हैं। ठीक है, ये जो ख़ास तौर पे सोशल टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कि फैसिलिटेट करे सोशल इंटरेक्शंस को। तो अब सोशल इंटरेक्शंस के लिए जो टूल हैं जैसे कि फेसबुक नंबर 1, ट्विटर, उसके बाद यूट्यूब एक तरह से, और बेइंतहा फोरम्स मौजूद हैं, एग्जैक्टली यूथ का जो पसंदीदा इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट्स, तो ये सारे टूल्स तो मौजूद हैं जी। चूँकि आपने जिक्र किया इनके प्रॉब्लम्स का, और इसका अगेन इसके प्रोग्राम के दौरान हम इसके अंदर मज़ीद डिटेल के अंदर जाएंगे। लेकिन ये जो चेंजेस आए हैं डेफिनेटली इसके न्यूमरस बेनिफिट्स हैं। तो अगर सिर्फ नुकसानात पे बात की जाए तो मैं समझता हूँ जस्टिस नहीं होगा, बेइंतहा बेनिफिट्स हैं। और ड्यू टू ह्यूमन नेचर वी टेंड टू लुक अपॉन द बेनिफिट्स मोर देन द डैमेजेस। तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर इस प्रोग्राम में शेयर करूँगा कि इसमें किस तरह से हम इसको देखते हैं, किस तरह से ड्यूरिंग इस रिवोल्यूशनरी चेंजेस को हमने शुरू से फॉलो किया है और इसका पार्ट रहे हैं। बिकॉज आई रन एन इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी एज वेल, सो सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ आवर वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। ओके, अच्छा कलीद, फेसबुक से पहले आप एग्जिस्ट नहीं करते थे, मैंने एक स्टेटमेंट दिया है। मैं तो जानती थी आपको, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी में नहीं जानती थी आपको, क्योंकि आप जो भी कम्युनिटी में काम करे थे वो क्योंकि फेसबुक पे नहीं दिखता था तो लोगों को नहीं पता था। मुझे नहीं पता ये फ्रेज़ जो मैंने अटर किया है कितना सही है, आप मुझे बताइए ऐसा है या नहीं है? ऐसा बिल्कुल है एक्चुअली। और सबसे पहले आज का टॉपिक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत डिस्कस होनी चाहिए अब ओपनली मीडिया में भी। ये है कि मेरे पास वाकई में जो था फेसबुक जो था शुरू में नहीं था। और उसके अलावा जैसे अगर जो मैंने अब चीज़ नोट करी है कि इस नॉमिनेशन के बाद से कि फेसबुक ना जो नहीं था मेरे पास, वो एक तरीके से अच्छा था कि नहीं था अच्छा था कि नहीं था। लेकिन चूँकि जब जाहिर सी बात है आप एक ओपनली जब आप आते हैं नॉमिनेशंस के बाद पॉलिटिक्स में आते हैं तो इट इज़ अ नेसेसिटी, इट हैज़ इट्स ओन प्रोस एंड कॉन्स। लेकिन ये है कि चूँकि अब लोग जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ सोशल मीडिया डेफिनेटली। जैसे But why do you say that you have to be part of social media? Why is it so important? क्योंकि लोग जो है आपको जज करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि अब मैंने तो मेरे पास ट्विटर भी नहीं था पहले, तो मैंने ट्विटर अकाउंट जो था वो एक्टिव करा, ट्वीटिंग करा। तो फिर मुझे पता चला कि लोग कितने अब एकदम से विद इन 3 वीक्स और सो मेरे कोई 100+ फॉलोअर्स हो गए।
तो अब वो देखना पड़ता है ना कि आप जो है लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आप अपनी एक सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं थ्रू फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह। अच्छा कली, तो मुझे ये बताइए, हाउ सैड इज इट? आई डोंट नो वेदर इट्स सैड और इट्स गुड, बट फॉर मी इट्स अ वेरी सैड प्लाइट के जो हम पहले कहते थे कि एक हाथ से दो तो इस तरह से दो कि दूसरे को पता ना चले, आप यू डोंट हैव टू एक्चुअली ब्रैग व्हाट यू डूइंग, बट अनफॉर्चुनेटली नाउ यू हैव टू टेल। व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, तो हमारे जो एक उस्ताद थे मार्केटिंग के, वो हमें एक फ्रेज बोलते थे, और वो कहते थे कि याद रखना जो दिखता सी वो बिकता सी। सो इट इज़ नेसेसरी to tell what you're doing in order to sell yourself. Is it important nowadays? Is it sad? Is it good? How do you see that? इसकी दो राय हैं। मेरे नज़दीक अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मैं कभी भी वो फेसबुक पे पोस्ट नहीं करता, क्योंकि वाई डू आई हैव टू, तो मेरा अपना एक वो पर्सनल वो है कि अगर मैंने किसी की हेल्प भी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, वो मैं एक इट्स अ लिंक बिटवीन मी एंड गॉड, राइट। तो मुझे किसी तीसरे बंदे को बता के वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आप कोई एक अच्छा काम करते हैं तो आप वो बताएं ताकि उससे दूसरों को इनकरेजमेंट मिलती है। ये भी बात सही है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीज़ है, मैं अगर मुझे लगता है कि चलो ये सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट कर दूँ ताकि अगले को पता चले कि ये कोई एक काम हो रहा है, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि और लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगर किसी का जैसे अगर आप देखें तो ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस एक आया जी, ठीक है, सोशल मीडिया ने उसको उस पर बड़ी हेल्प करी। अब जैसे मेरी वाइफ जो थे वो मिसागा ईस्ट कोक्सवेल में काफ़ी इन्वॉल्व थे रेफ्यूजीज़ के उसमें, तो जो मेरी वाइफ थी वो मुसलसल पोस्ट करती रहती थी फेसबुक पे कि जी आज इस फैमिली को इस चीज़ की ज़रूरत है, आज इस फैमिली को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उससे ये हुआ कि वो हम लोग पोस्ट करते थे और फ़ौरन 15-20 लोग जो थे वो एकदम मैसेजेस कर देते थे कि यार हम अवेलेबल हैं, हम अवेलेबल हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो यस, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। विल स्टॉप हियर। नाज़रीन इसी पे कंटिन्यू करेंगे, डोंट गो अवे, विल बी बैक शॉर्टली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेलकम बैक नाज़रीन। सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। जी कलीद, आप ये बता रहे थे कि सो यू एक्चुअली यूज़ फेसबुक टू स्प्रेड वर्ड रादर देन मार्केटिंग। जी हाँ, बिल्कुल। ओके, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ फेसबुक पे डालते हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो लबैक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, दे स्टैंड अप, दे वांट टू हेल्प पीपल अराउंड। दिस इज़ अ पॉजिटिव एरिया। आपके बारे में ये भी मशहूर किया गया था कि आप अफ़गानी हैं। आपके बारे में ये भी कहा गया कि भाई आप पाकिस्तानी भी नहीं हैं, आप अफ़गानी हैं। फिर पता नहीं क्या सीरियन रेफ्यूजीज़ में आपने कुछ चावल के थैले भी बांट दिए और पता नहीं क्या क्या किया। तो आप ये मुझे बताइए कि आपने क्यों किया ऐसा, अगर किया और नहीं किया तो ये सब क्या था? देखें जी, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स राइट एट द एंड ऑफ द डे। और यही मैंने कहा ना कि फेसबुक ना होने का एक ये बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं था, और क्योंकि आप वहाँ नहीं थे। एग्जैक्टली अगर मैं किसी इवेंट में भी जाता था तो पीछे से खामोशी से अपना काम करा और निकल गए। फेसबुक पे नहीं था तो आप जाहिर सी बात है कि आप तस्वीरें वगैरह ये पोस्ट भी नहीं करते जी। चावल कहाँ से मैंने बांटे, मैं खुद अक्सर सोचता हूँ कि वो कोई बासमती चावल किस टाइप के थे जो मैंने बांटे। लेकिन इट्स पॉलिटिक्स राइट, एट द एंड ऑफ द डे आपके अपोनेंट्स जो होते हैं वो या कोई भी लोग जो हैं वो न्यूज़ करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप अगर इफ़ यू नो दैट यू आर राइट एंड यू आर ऑन द राइट पैथ, then regardless of what other people say. So what did you learn out of this experience? Social media plays a very important role. It plays an important, and you have to be there. Exactly. अगर कम से कम अगर आप पे कोई नेगेटिव अटैक कर रहा है तो आप उसको एज अ रिस्पॉन्स कर सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। पॉजिटिव मैनर, यस। राशिद, प्रॉब्लम्स पॉजिटिव भी हैं बट प्रॉब्लम्स मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया आने से ज़्यादा बढ़ गए हैं। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर आपकी इजाज़त हो, चूँकि टॉपिक निकला था कलीद के ऊपर अटैक्स होने का और जो भी एक सिलसिला चल गया था,
उसी की कंटिन्यूएशन में एक मैं बात यहाँ करना चाहूँगा दिलचस्पी के लिए, और ये बिल्कुल पार्ट ऑफ मेरी प्रेजेंटेशन का बिल्कुल नहीं है। मेरे जहन में एक बात आती है, आपसे एक सवाल किया जा सकता है जी। ये फेसबुक पे नहीं थे जी, तो फिर एक अचानक फेसबुक पे आए और फिर इस तरह से लोगों को कुछ पता चला, ज़ाहिर इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ ऐसे ही था ना। आप इनका फेसबुक से ना होना जी, इनके साथ जो भी कुछ हुआ वो आपके सामने, लेकिन आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि कुछ लोग जो कि सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं जी, और वो रहते ही फेसबुक पे हैं, हाँ। उनकी फोटोग्राफ्स और एवरीथिंग, तो आपके ख्याल में क्या ये बेनिफिशियल हो रहा है या इट्स जस्ट दे हैव टू बी देयर और समथिंग, ये ऐसा, इसमें क्या प्रॉब्लम्स एंड प्रोज एंड कॉन्स की तरफ आप क्या देखती हैं, किस तरह देखती हैं? अच्छा, now that Rashid has put me on spot, so I will take the liberty of giving my opinion about it. मेरे हिसाब से कुछ लोग हैं जिनकी दुनिया सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया है। उनको लगता है अगर आप सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं वो सच है, उसके अलावा बाहर दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स भी सिर्फ सोशल मीडिया पे रन किए जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनको हम कहते हैं कि वो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनकी फिलैंथ्रोपी भी सिर्फ फेसबुक की हद तक ही महदूद होती है। और बहुत सारे लोग सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन के तहत ही काम करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि अगर मैं XYZ काम कर रहा हूँ, अगर मैंने $1 भी किसी को दिया, दैट शुड गो ऑन फेसबुक सो दैट पीपल नो। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम में से कोई इतना बच्चा नहीं है कि हम ना समझ सके, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ देयर। एक चीज़ है, फेसबुक है, उनको खुद भी नहीं पता था बेचारों को कि जब उन्होंने बनाया होगा कि तो इसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा या मिस यूज़ किया जाएगा। एज ए ह्यूमन बीइंग आई थिंक कि ये हम पे डिपेंड करता है हम किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं। हम चाहे उसको पॉजिटिवली यूज़ करें, हम चाहे उसको नेगेटिवली यूज़ करें, हम चाहे उसको यूज़ करें रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए, हम चाहे उसको यूज़ करें रिलेशनशिप्स डिमोलिश करने के लिए, ये हमारी चॉइस है। मैं अभी किसी से बात करी थी तो मैंने उनको ये कहा था कि पहले फेसबुक और सोशल मीडिया होने से पहले अगर हमारी लड़ाई भी होती थी तो हम उन लोगों से लड़ते थे जिनको हम जानते थे, हमें पता था कि वो इंडिविजुअल क्या है, और किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के तहत या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत हमारी उनसे लड़ाई होती थी। नाउ एट दिस टाइम इन दिस एरा हम उनसे लड़ते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। हम उनके बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं होता है, विच इज़ अ वेरी सैड प्लाइट। सो ये मेरा ओपिनियन है। राशिद, अब आप बताइए। आई डोंट नो। जी हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो लास्ट 15 इयर्स के ये जो ड्रामेटिक और रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं सोशल टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें ये जो आपको मीडियम्स मिल गए हैं जिसके ऊपर आप सब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, इसके न्यूमरस एडवांटेजेस हैं। तो अगर एडवांटेजेस की बात की जाए, देयर आर सो मेनी स्टोरीज टू शेयर। जो कुछ होता है 1 मिनट में वायरल हो जाता है, और अल्टीमेटली जो भी इसके अंदर जिसका भी जैसा रोल है उसको उसके हिसाब से उसका रिटर्न मिल जाता है राइट अवे, वेरी फास्ट मीडियम है। अब जो बात इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सोशल मीडिया अनचार्टेड टेरिटरी है मेरी नज़र में। इसके लिए नोबडी इज़ एन एक्सपर्ट। मैं even I have a combined experience of over 25 years in information technology, लेकिन मैं अपने आप को इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं कह सकता, बल्कि शायद टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं है। क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि फेसबुक को खुद भी नहीं पता होगा कि ये रेवोल्यूशनरी किस कदर तेज़ी से ये फैला है और इसके अंदर इसके क्या डैमेजेस हैं, प्रोज एंड कॉन्स स्टिल सामने आ रहे हैं। लेकिन आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है कि बेसिक्स जो है ना हमारे, हमें वो नहीं भूलने हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल्स, वो गोल्डन रूल्स जो हमारे जो हमने सीखे, जो हमारे ऑल द इयर्स बिफोर फेसबुक या ऑल द इयर्स बिफोर सोशल मीडिया जो एग्जिस्ट करते थे, उनसे हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए ना, सबसे बड़ा जो आप इसमें जो लॉस है वो है लॉस ऑफ टाइम एंड डिस्ट्रैक्शन। आप अपना टाइम लॉस करते हैं, इंतहा मतलब एक पूरा काम मिल गया है जिसके नतीजे में और छोटे छोटे अदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर आ रहा है, आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक ही डिस्टर्ब कर दी है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आप उनसे पूछें वो किस वक्त सोते हैं। आप कोई भी 3-4 बजे से पहले नहीं सोता, क्योंकि ये इनका फुल टाइम एक जॉब है जो सारा कुछ करने के बाद वो फेसबुक के ऊपर फिर वो एक्टिव है। But then why do you have to hook on to Facebook so much? देखें, फोमो एक बड़ी मशहूर चीज़ है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट।
अब प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूँ, अब वो ग्रुप इन फेसबुक पे एक्टिव है, अब चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी मुझे अब उसका हिस्सा रहना है। मेरी कुछ फोटोग्राफ्स, मेरा कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी टू शो दैट आई एम पॉपुलर, आई एम स्टिल एग्जिस्ट, वो वहाँ पे आनी ही आनी है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग अगर अपने आप को जस्टिफाई करें और सोचें अपने आप के साथ, तो वो चाहते भी नहीं हैं कभी कभी तो इतना एक्टिव होना, लेकिन वो उनको अटैच होना पड़ता है। सो फोमो इज अ बिग ड्रॉबैक ऑफ हैविंग ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आ जाते हैं। फिर साइबर बुलिंग है, आपने किसी के लिए कुछ बात कर दिया, आपने क्रिटिसाइज कर दिया, उसके पहले क्रिटिसाइजेशन फेस टू फेस होता था, 4 लोग मना लेते थे, बात ख़त्म हो जाती थी। यहाँ तो आपने एक ऐसा बॉक्स ऑफ वॉर्म्स खोल दिया जैसे ही आपने कुछ किसी की मर्जी के खिलाफ बात कर ली। तो साइबर बुलिंग इज अ बिग एलिमेंट। बहुत एक्टिव हुए हुए हैं पीटीआई और पीएमएलएन के लोग। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कलीद आप कुछ कह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि मैं राशिद भाई की बात को ऐड करना चाहता था कि आई फील कि इट्स एन एडिक्शन, इट्स एन एडिक्शन बिकॉज, और मैं अब खुद ये चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे अभी राशिद भाई ने कहा कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप 2-3 बजे तक जागे हुए होते हैं कि यार फेसबुक पे क्या हो रहा है या ट्विटर पे क्या हो रहा है, और मैंने अपने आप को वो चीज़ सब नोट कर रहा हूँ कि मैं जैसे रात को 2-2, 3-3 बजे भी ना जो है सोशल मीडिया चेक कर रहा होता हूँ कि अच्छा किसी ने क्या कमेंट दिया, क्या पोस्ट करा है। तो और एक चीज़ और मैंने जो नोट करी है वो ये कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो अब एक रियली जो है वो एक तरीके से अब साइड पे होती जा रही है इस सोशल मीडिया की वजह से। अब जैसे मेरा सेल फोन जो होता है वो मैं अपनी साइड टेबल पर रख के अब सो रहा होता हूँ, बीच में उठूंगा चेक करूंगा अच्छा फेसबुक पे ये चल रहा है या ट्विटर पे अच्छा ये चल रहा है, तो किसी ने फिर मैसेज तो नहीं करा या किसी ने मेरे बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, तो आपको आप हमेशा एक टेंशन में रहते हैं कि स्ट्रेस एग्जैक्टली कि यार अच्छा मैं फेसबुक पे जब मैंने कोई कमेंट डाला, अब किसी ने कोई मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट तो नहीं डाला, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप वो कमेंट डालते हैं तो आपके अलावा वो हज़ारों लोग और देखते हैं, पार्टी के लोग देख रहे होते हैं, तो आपको हमेशा ये टेंशन रहती है यार कि बस दुआ होती है कि यार कोई चीज़ गलत ना हो जाए बस। अच्छा, इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि सोशल वैल्यूज़ पे भी पड़ता है। एक ज़माना था जब हम बात करते थे तो हम बहुत ख्याल करते थे कि आप किसी की पर्सनल फीलिंग्स को हर्ट ना करें बिकॉज यू वर समहाउ रिलेटेड टू दैट पर्सन। डायलॉग के दौरान भी जब हम नाराज़गी का या बरहमी का इजहार करते थे तो हम अपने वर्ड्स को लेके बहुत केयरफुल होते थे। नाउ दैट हैज़ चेंज्ड। अब जो मर्जी आती है, जैसी मर्जी आती है, जो दिल चाहता है हम कह देते हैं। हम बाज़ दफ़ा मुझे लगता है ये भी भूल जाते हैं कि इट इज़ ओके टू डिसएग्री विद समबडी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, हर जगह होगा। अगर किसी का ओपिनियन आपसे मैच नहीं भी करता, इट्स ओके, लेट दैट बी। पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। देखिए सोशल मीडिया के जो एटिकेट्स होते हैं ना, हाँ, वो हम लोग में बिल्कुल ओह दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। सोशल मीडिया एटिकेट्स होते हैं कुछ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो है ही नहीं, क्योंकि जैसे अभी आपने बात करी थी कि फेसबुक पे पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जी दुरुस्त। आप वो अगर कमेंट्स देखें तो आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि यार ये जो है एक अच्छे एजुकेटेड लोग जो है ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक दूसरे को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कपड़े उतार देने वाली बात हो रही है। Yeah, they go crazy कि जी मतलब इतना उसको आप हर्ट कर दें अगले बंदे को कि उसकी जो है मतलब पूरे और जगहों पे जो है इसी को तो हम साइबर बुलिंग कहते हैं। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा और फिर ये हम लोग ये नहीं देखते और फिर वो ट्रोल्स बनना शुरू हो जाते हैं, पुरानी पिक्चर्स निकाल के उन पे आई डोंट नो व्हाट। और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो है चीज़ आप सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि आप अपनी एक पर्सनैलिटी को और उसके अलावा आप दूसरी कम्युनिटीज़ को ये बता रहे हैं कि हम लोग जो है एक चीज़ को लेके हम कितने अग्रेसिव हो जाते हैं। क्योंकि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की कि कोई चीज़ छुपती नहीं है। बिल्कुल। आपने एक कमेंट करा, 50 लोग जो है वो देखेंगे, वो आगे 50 लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, तो विद इन कम्युनिटी भी उसका नुकसान है, जिसको हम इंटर एंड इंट्रा कहते हैं, दोनों तरीकों से हमें नुकसान हो रहा है। दोनों तरीके से नुकसान हो रहा है ना। अब जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की हो रही है, लड़ हम यहाँ पर रहे हैं और लड़ हम सोशल मीडिया पे रहे हैं।
over a billion users जो है और social कनाडा में media। रहते हुए आज और भी कम्युनिटीज हमारे फेसबुक के पेज पे होती है, वो भी देख रही हैं। एग्जैक्टली तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये सिर्फ फेसबुक की हद तक नहीं है, ये ट्वीट भी हो रहा होता है एंड देन रीट्वीट्स हो रहे होते हैं एंड इट्स अ वॉरफेयर। एग्जैक्टली तो वो ये जो एटिकेट्स है ना, वो हमें सबसे पहले हमें वो लर्न करने चाहिए कि जी व्हाट आर द एटिकेट्स ऑफ सोशल मीडिया इन माय ओपिनियन। ओके सो नाज़रीन जानते हैं, वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक से, तो जानते हैं कि इन प्रॉब्लम्स के हल क्या है और उनसे कैसे बचा जाए। ये अगर एडिक्शन है तो इस एडिक्शन से कैसे अपने आप को बचाया जाए। सो डोंट गो अवे, विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात करते हैं कलीद से। जी कलीद, आप कह रहे थे कि फेसबुक एटिकेट्स होने चाहिए। ये अब एटिकेट्स मौजूद हैं, नहीं है तो कौन बनाएगा? मेरे ख्याल में तो ये एटिकेट्स हमें खुद एज अ अपनी पर्सनैलिटी को लेके बनाने चाहिए कि जी अगर आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप अगले से भी बात कर रहे हैं। तो इन जनरल लाइफ भी अगर आप सोशल मीडिया को साइड पे कर लें, मैं और आप अगर आपस में बात कर रहे हैं तो हमारे अपने एक एटिकेट से बात करने के। तो अगर मैं सोशल मीडिया में आपके लिए कोई कमेंट कर रहा हूँ तो मैं ये सोचूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और फिर उस लिहाज से अपने कमेंट्स को पोस्ट करूँ। तो यहाँ से एटिकेट्स आते हैं और ये आपके अपने पर्सनैलिटी, अपने पर्सनल लेवल पे आपको जाकर ये चीज़ करनी देखना पड़ेगा। जी, और बचपन से जब हम ग्रो अप हो रहे होते तो प्रॉब्ली पेरेंट्स हमें सिखाते ही हैं कि कैसे बात करनी चाहिए। तो वही हमको इंश्योर करना चाहिए फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी भी और मीडियम से किसी से बात करते हैं। एग्जैक्टली। ओके राशिद, आपको क्या लगता है इन प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? प्रॉब्लम हमें पता है, वेस्ट ऑफ टाइम है, स्ट्रेस बढ़ गया है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप बुली भी होते हैं, बुली भी करते हैं, देयर आर फेसबुक ट्रोल्स, सोशल मीडिया ट्रोल्स जो आपको बॉदर कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इसकी वजह से, टीनेजर्स में ADHD बढ़ रहा है। हमारी पिछली एपिसोड में डॉक्टर पंजवानी ने उसके बारे में बात की थी। सब कुछ हो रहा है, सलूशन क्या है? हाउ डू वी टैकल दिस इश्यू? प्रॉब्लम्स बहुत से हैं, बहुत सारे हैं, और देखा जाए तो कुछ मेन प्रॉब्लम्स के सब प्रॉब्लम्स हैं। तो जिस तरह से मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि देयर आर 3 वेरी ह्यूज बिग प्रॉब्लम्स। नंबर 1 जो प्रॉब्लम है वो है वेस्ट ऑफ टाइम। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। एंड प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि वो बहुत हद तक ख़तरनाक भी है, इसका साइबर बुलिंग। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिस तरह से मेरा जो सजेशन है, जो मैं ख़ुद अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, वही चीज़ शेयर करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके नाज़रीन को, कि वेस्ट ऑफ टाइम का सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने आप के साथ चैलेंज करें। लेट्स से 1 मंथ नो फेसबुक चैलेंज, या 1 वीक या 2 वीक्स नो फेसबुक चैलेंज। 1 मंथ एकदम से तो ज़्यादा नहीं, एकदम से ज़्यादा, मतलब वही कह रहा हूँ कि जितना आप कर सकते हैं। और उसके लिए सेटिंग्स में जाएं, देयर इज़ एन ऑप्शन वेयर यू कैन से यू नो ब्लॉक फेसबुक और डीएक्टिवेट फेसबुक, और उस पर लिख दें कि आई विल कम बैक। जो भी है उसमें वो आपके पास सारे ऑप्शंस मौजूद है। इसमें आप अपने कोई फ्रेंड्स लूज़ नहीं करते, आप अपनी टाइमलाइन पे कोई न्यूज़ लूज़ नहीं करते, यू जस्ट डिसअपीयर। यू कैन गिव अ नाइस मैसेज टू योर फ्रेंड्स के आई एम यू नो ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट। एक अच्छा मैसेज भी होगा कम्युनिटी को, मैं आई एम डीएक्टिवेटिंग माई फेसबुक फॉर 2 वीक्स। It's a challenge. No जैसे Facebook one challenge. bucket challenge और बहुत सारे challenges चले थे। बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ही आप डिफीट कर सकते हैं। अपने आप से इस तरह से आप एक किस्म का अगर आप अपने आप को ब्रेक देंगे, इट विल हेल्प यू। दूसरा जो है वो ये है कि जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्ट्रैक्शंस को जो सॉल्व करेगा आपकी, ऑलवेज लेट रिप्लाई। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट करें कि एक इमीडिएट अर्ज होती है, आपने कोई चीज़ मैसेज देखा, हैप्पी खुशी का है, या आपको कोई डिसअपॉइंटिंग मैसेज है, आपको उस वक्त अर्ज होती है यू नीड टू रिप्लाई बैक राइट अवे। उसमें आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप ये देखें कि डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग भी है, फैमिली को आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप जो है ना एक साइड में करके आपके लिए सारी तवज्जो जो है वो आपके उस मैसेज की तरफ चले जाती है। आप छोटी छोटी सी एग्जाम्पल दें, वॉलमार्ट में आप जाते हैं और कस्टमर सर्विस पे आप खड़े हैं, आपके साथ एक लाइन क्यू लगी हुई है जिसमें 7 लोग आपके आगे हैं। अगर ऐसे में कोई शख्स जो है वो 7 लोग पीछे हैं, आपके 7 लोग आगे, कोई शख्स जो जिसको टेक्निकली 15th नंबर पे होना चाहिए था, एकदम से आपको सबको काट के आगे चला जाए, आपको कैसा लगेगा?
एग्जैक्टली। तो यही चीज है कि वो मैसेज किस तरह से प्रायोरिटी ले सकता है जबकि आपके साथ क्यू में और बहुत सारी चीजें हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिप्लाई लेट, और उससे आपके बहुत सारी चीजें, आप अगर कूल हेड हो जाएंगे अगर आपने कोई एंग्री चीज देखी है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। जो तीसरी चीज है साइबर बुलिंग के लिए, मैं कन्वेंशनल हमारे जो तरीक़ेकार रहा है हमारी फैमिलीज़ का, और हमें हमारा रिलीजन जिसके लिए हमें तालीम देता है, हमारी सोसाइटी जिसके लिए तालीम देती है, कैरेक्टर बिल्डिंग में जो हमने बचपन से चीज़ें सीखी हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको बचाएगा हर किस्म की साइबर बुलिंग से, आपको एम्बैरसमेंट से, वो है डोंट क्रिटिसाइज, डोंट आर्ग्यू एंड ऑलवेज गिव एन ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें। किसी को क्रिटिसाइज ना करें। क्रिटिसाइज इज ऑलवेज अ होमी पिजन, इट विल कम बैक टू यू। तो डोंट क्रिटिसाइज, डोंट आर्ग्यू। कोई अगर एक थ्रेड शुरू हो गया है, डू नॉट आर्ग्यू, जस्ट लीव इट। और उसके बाद गिव ऑलवेज एन ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन। आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू ऑफ हियर, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी हम करते हैं और आउट ऑफ इग्नोरेंस, मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है और अगर मैं वहाँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रही हूँ, उसको आर्ग्यूमेंट नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो हो रहा है तो वो इज़ फॉर द सेक ऑफ गेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये हमें एज इंडिविजुअल डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा अच्छी तरह से पता होता है कि हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। आया हम जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए करें, या आया हम जेन्युइनली किसी को तंग करने के लिए कर रहे हैं। मैं एक सीक्रेट शेयर करूँ? हाँ जी। Okay. बड़ा आसान तरीका है। देखिए, अगर कोई आर्गुमेंट चल पड़ा है किसी थ्रेड में, यही आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा, इसमें एक सीक्रेट मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन फिर अब तो ये सीक्रेट नहीं रहेगा। हाँ, शेयर कर देंगे। बी द लास्ट पर्सन टू पुट योर इन्फॉर्मेशन, बी द लास्ट पर्सन। देखिए, कोई थ्रेड चल पड़ा है ना, इन्फॉर्मेशन है, आप लर्न करें, आपको जल्दी जंप करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू बी द लास्ट पर्सन। आप जब when you see that you want to be the last person, you will see many things जो आप कहना चाहते थे दूसरे ने ऑलरेडी कह दी है। आपको आपकी उसके कहने के ऊपर जो वो फायर फेस कर रहा है, आपको वो नजर आ जाएगी। आई थिंक द बेस्ट टू द बेस्ट इज, मैं हमेशा अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ दूसरों को भी सजेस्ट करूँ, अपनी फैमिली को भी, बच्चों को भी, बी द लास्ट पर्सन टू रिप्लाई। तो आपको इतनी जंप ऑन करने की जरूरत नहीं है, लर्न करें उस थ्रेड से, इसमें कोई मसला नहीं। ये थ्रेड्स को रीड करना कोई मसला नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने उसी वक्त ही रिप्लाई करना है। बी द लास्ट पर्सन। ओके, अच्छा कलीद, आपसे एक सवाल पूछती हूँ। ये जो एक क्रेज है कि जो है उसकी उसी वक्त तस्वीर खींचनी है और उसी वक्त अपलोड करनी है, इफ यू हैविंग अ गुड, इवन इफ यू हैविंग अ गुड मील, पीपल टेंड टू फर्स्ट क्लिक, शेयर इट ऑन फेसबुक एंड देन ईट। इफ़ यू आर गोइंग आउट विथ योर फैमिली, अगर आप सपोज रोलर कोस्टर पे बैठ रहे हैं, आप पहले रोलर कोस्टर की तस्वीर खींचते हैं, वो फेसबुक, एंड देन यू गो एंजॉय द राइड। आर वी सपोज्ड टू डू दैट? वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट, एब्सोल्युटली। उसका मसला क्या है कि इट्स एक कंपटीशन हो गया है। एग्जैक्टली। कि क्या है कि अगर उसने ऐसा करा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अगर वो उस एक इवन दो कि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो CN टावर के किसी रेस्टोरेंट पे, CN टावर का जो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, उधर जाके अगर उसने खाना खाया है और फेसबुक पे शेयर करा है, मुझ पे भी तो जरूरी है। या मुझ पे भी हो गया कि मैंने भी वहाँ, इवन दो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं वहाँ जाके मैंने खाना खाना है, क्योंकि आपने उसी सोशल एनवायरनमेंट में रहना भी है। तो इट इज अबाउट कोएग्जिस्टिंग देन, कोएग्जिस्ट, और इट्स अ कंपटीशन एट द एंड ऑफ द डे। और राशिद भाई की जो एक बात पहले चल रही थी कि जी साइबर बुलिंग या इसमें सुसाइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे देखें, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं या और कम्युनिटीज़ भी अगर आप ले लें, इस वेरी, मैं 2 बेटियों का बाप हूँ जी, ठीक है। कल को इंशाल्लाह उनकी शादियाँ भी होनी है इंशाल्लाह। मैं अक्सर लोगों को कहते हुए सुनता हूँ ये बात, और मैंने देखी भी है कि एक अच्छे घर जो है वो इन सोशल मीडिया की वजह से टूट भी जाते हैं जी। और ये एक सबसे बड़ा एक डिलेमा है हमारे साथ कि जी एक कहीं किसी का एक रिश्ता अगर हो रहा हो और उसकी कोई ऐसी पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट कहीं से आ गई हो, तो उसकी वजह से घर टूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चीज़ मैंने यूके में सीखी थी, जिसकी वजह से मैंने था कि मेरा सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट नहीं था,
कि हमारे प्रोफेसर ने वहाँ पे हमें ये चीज़ बताई थी कि एक उनका एक था, वो किसी को हायर कर रहे थे, जी। तो उन्होंने सबसे पहले उनका जी जो कैंडिडेट था उसका सोशल मीडिया अकाउंट जी पूरा चेक करा। जी तो उस सोशल मीडिया अकाउंट पे उस कैंडिडेट ने हैलोवीन का एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जो कि उनकी कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट था। तो उन्होंने उसको जॉब नहीं दी। तो ये एक चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को देखनी चाहिए कि जो कहीं भी अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो दे ऑलवेज फर्स्ट चेक योर सोशल मीडिया कम्प्लीटली thoroughly जी। और फिर उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं अच्छा, क्योंकि आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो दे हैव टू मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट बिकम एन एम्बेरसमेंट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जी हम लोग जो है इस चीज़ों को बहुत केयरफुली यूज़ करें, मिस यूज़ ना करें। एक ये इट्स अ सोशल थिंग, इट्स अ गुड थिंग एज वेल टू, लेकिन इसको मिस यूज़ ना करें। और जो हम इतनी बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इट्स ओके टू यू नो टू से व्हाट यू वांट टू से, बट बी अ लिटिल कंपैशनेट ओवर देयर। ये सोचें कि अगर वही चीज़ आपके साथ कोई करे तो आपको कैसा लगेगा। एम्पैथी होती है, पुट योरसेल्फ इनटू समवन एल्सेस शू एंड थिंक कि अगर आपके साथ ये होगा तो आपको कैसा लगेगा। एब्सोल्युटली। और यही चीज़ अगर हम सोच के कुछ करें तो फिर इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट? लेकिन अक्सर होता है कि हम लोग ये चीज़ सोचते नहीं, बस वी बिकम अग्रेसिव एंड रिएक्टिव रादर देन प्रोएक्टिव। या कोई लास्ट मैसेज आप दोनों हमारी नाज़रीन को देना चाहेंगे? पहले राशिद आप। मैं जॉन एलिया का एक शेर है जो कि मैं जिस मौके की मुनासबत से बड़ा फिट हो रहा है कि हैं दलीलें तेरे ख़िलाफ़ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में। तो फेसबुक और ये सोशल मीडिया छोड़ना तो हमने है नहीं, हमारा ये कल्चर का हिस्सा हो गया है और जैसे मैंने कहा ये अनचार्टेड टेरिटरी है, इसने चलते ही रहना है। तो जस्ट ट्राई टू बी यू नो जो हम सब ने मिल के जो आपके सामने बात की, या बैलेंस करें, थोड़ा रिसर्च करें एंड ट्राई टू यू नो या कीप अ गुड बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड सोशल लाइफ। मेरा मैसेज इज अ वेरी सिंपल वन कि रिस्पेक्ट ईच अदर और शो इवन ऑन सोशल मीडिया आप ये दिखाएं कि वी आर यूनाइटेड और उसी से जो है वी आर ह्यूमन। एग्जैक्टली। तो जब तक आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, फॉरगेट अबाउट कि ये कोई आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा। और ये चीज़ हमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक रखनी चाहिए कि जी व्हेन एवर वी आर पोस्टिंग समथिंग और डूइंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, जस्ट मेक श्योर दैट आप अगले बंदे की रिस्पेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू खलीद, थैंक यू राशिद, थैंक यू सो मच। मेरा मैसेज एक पोएम है, मैं आपसे शेयर करती हूँ, यू विल एंजॉय इट डेफिनेटली। There was a time when love conquered all. Simple first dates and hugs brought down walls. Social media wasn't a factor. No pretending of a glamour life, no Twitter actors. You didn't care about your experience to satisfy others. You wore what you felt like, no gratified covers. No judgmental trolls, no fear or wonder. How will they think of me? Wasn't one of your troubles. Now anything we do is judged by every status. Every picture we post comes with the package. Are we good enough for you? Read between the caption. Girls quote their pictures fishing for satisfaction. Look at me, I'm doing great. But deep inside, we are crying. Behind the picture is the truth, while the caption does the lying. 100 selfies taken, and every one we are denying, till we pick the right one, but a filter is worth trying. I pretend I live glamorous, but I give my life to the net. Seems like I traveled the world, but home I never left. A slave to this phone, computer the whole set, can't spend half an hour without checking a text. If I die tomorrow, mourn for my lost time. If life is worth living, I might have read about it online. This poem is written by C. Stiles. It's a very interesting poem. आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आज का टॉपिक हमसे रिलेटेड टॉपिक है क्योंकि ये हम पे अफेक्ट करता है एज इंडिविजुअल, एज फैमिलीज, एज कम्युनिटी एंड एज एन एंटायर नेशन। कोशिश कीजिए, जैसे मैं कहती हूँ हर दफ़ा, ज़िंदगी में बैलेंस लाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, इसी से आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।